So today we're going to look at the work of Melvin P. Leffler. It's a very famous book called A Preponderance of Power. बड़ी influential किस्म की किताब है, बड़ी detailed किस्म की किताब है, इतनी तफसीलात हैं इस किताब में कि बंदा थोड़ा सा हैरान व परेशान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि इतनी सारी मुख्तलिफ चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे। मगर इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये नहीं होगी कि तमाम मुख्तलिफ डिटेल्स जो हैं वो आपको सिखाऊं, बल्कि एज़ was the case with the previous lecture, एक ब्रॉड आउटलाइन मैंने आपको देनी है कि क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके सामने पेश की जा रही है। Just a few brief biographical remarks about Leffler. He is professor of history at the University of Virginia, and he's won many prizes, including for this remarkable book. And he's also served on the advisory council for the CIA as well as the State Department to declassify documents. यानी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी उसको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देती है कि ये बंदा बहुत सीनियर हिस्टोरियन है and he really knows his stuff, and then we should discuss with him what documents we should or shouldn't declassify for the benefit of historians. Now the narrative of the book begins by telling us about how when World War II ended, तो एक तरफ से सोवियत सोल्जर्स, दूसरी तरफ से अमेरिकन सोल्जर्स, दोनों नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उन्होंने जब डिफ़ीट किया तो दे वर फाइटिंग अ कॉमन कॉज। ये एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोवियत सोल्जर है और एक यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर है, एक दूसरे को जफ्फी डाल रहे हैं। एक और तस्वीर भी थी जिसमें वो एक दूसरे को बोसा दे रहे थे, मगर मैंने कहा ये हमें फजूल की कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, इसको रहने देते हैं। बात यह है कि वी नो, और आप लोग तो ये बात जानते ही होंगे, आपने हॉलीवुड की कई फिल्में देखी होंगी, कि अमेरिका का सियासी, समाजी और उनका मुआशी निज़ाम, देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द सिस्टम दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अंदर ऑब्वियसली एक सोशलिस्ट निज़ाम था, कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती थी, वो मार्क्सिज्म लेनिज्म की बात करते थे, वो सरमायादारी, कैपिटलिज्म वगैरह के टोटली ख़िलाफ़ थे। और अमेरिका हमेशा prided itself on being capitalist and open to the free market and always said कि हम बड़े free marketeers हैं and this is the American way of life. So many of you might think कि sir, how can the two ever be together, या उनकी दोस्ती यारी कैसे हो सकती है, शायद ये फोटोग्राफ ही फेक हो या ऐसी कोई बात। ऐसा नहीं है। There are times in which the United States of America and the Soviet Union in fact did cooperate with each other. One of those very important times is of course World War II. So while we acknowledge that their social systems are totally different, at the time after World War II, there was this opportunity or question of whether these two superpowers would be able to get along, because obviously they had been getting along in the period of World War II. But I'm going to start my narrative थोड़ा पीछे से। मैं शुरू करूंगा बोल्शेविक रेवोल्यूशन से और थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाएंगे। और इसमें मेरा एम्फेसिस कुछ जहाँ पे इस चीज़ पर भी होगा कि अमेरिका ने क्या किया क्या नहीं किया, तो दूसरी तरफ इस पर भी होगा कि जो रशिया है उसके साथ क्या बीती और क्या नहीं बीती, उसकी तारीख क्या है। एज यू नो, रशिया वॉज डोमिनेटेड बाय ए मोनार्की, जो कि एक फ्यूडल मोनार्की थी, जिसके बादशाह को ज़ार कहा जाता था, और जिस तरह यूरोपियन बादशाहतें भी हुआ करती थी, they used to consider the Tsar to be semi-divine and that sort of thing, to be the representative of Christ on earth and so on. This was very common in the medieval period for all of Europe nearly. And this monarchy had survived now into the 20th century, whereas in many parts of Europe, like France and other places, the monarchy had either been defeated completely, like the French Revolution, or at the very least had been constrained by a constitution or by a House of Commons, as was the case in England. But here the monarchy remained in its more or less unadulterated form. There were some reforms, in particular 1860s के अंदर serfdom वगैरह के खिलाफ reform हुआ, कुछ modernization वगैरह की गई, मगर on the whole the structure of society was intact. अब World War I जब शुरू हुई, उसकी हवाले से आपको ये जानना ज़रूरी है कि this is really the age of empire. एक ऐसा period था तारीख़ में जब चंद यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ कोर्स वाज द ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ भी पहुँचे हुए थे वो, और यहाँ पे भी इंडिया उनकी सोने की चिड़िया थी।
द फ्रेंच एम्पायर वाज एब्सोल्युटली मैसिव, पूरे नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका को वो कंट्रोल करते थे, इसके अलावा इंडो चाइना को वो कंट्रोल करते थे। इसी तरह ज़ारिज़म का अपना एम्पायर था, कॉकेसस वगैरह के अंदर एक कंटिगुअस एम्पायर उन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ था। और टर्न ऑफ द सेंचुरी से इनफैक्ट जापान हैड आल्सो बिकम एन इंपीरियल पावर, उसको थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस भी करूंगा, आपको उनके एम्पायर की तस्वीर वगैरह भी दिखाऊंगा। और अमेरिका की भी एक ख्वाहिश थी कि हम भी एक एम्पायर बने, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर में जाने के पीछे एक मोटिवेशन यही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड बिकम इटसेल्फ एन एम्पायर। So these were some of the major empires. Of course, we also have Spain and Portugal. स्पेन ने बहुत बड़ा हिस्सा साउथ अमेरिका का, पोर्चुगल ने बहुत बड़ा हिस्सा ब्राज़ील वगैरह जो है इनको ऑक्यूपाई किया हुआ था, ये उनकी पावर्स थी। मगर यहाँ पे भी इनकलाब हो चुके थे, साइमन बोलीवार वगैरह ने आके इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स अब तक 20th सेंचुरी में बना दिया था। सो दीज वर एम्पायर्स दैट आर ऑलरेडी नाउ एक्लिप्स्ड। देयर वाज आल्सो द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, देयर वाज आल्सो द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की भी बड़ी वाह हुआ करती थी, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, इजिप्ट के अंदर, पैलेस्टाइन सीरिया के अंदर, हिजाज के अंदर, मक्का मदीना वगैरह। हम भी उसको बड़ा एडमायर करते थे, यहाँ के मुसलमान कहते थे कि इसको कायम रहना चाहिए क्योंकि उस्मानी खिलाफत मुसलमानों की अलामत है, एंड सो ऑन। सो दीज वर द बिग एम्पायर्स ऑफ दैट पीरियड। ये एम्पायर्स एक्सपैंड करते गए थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, जब तक एक ऐसा वक्त नहीं आया कि ये एक दूसरे के साथ, कोई जगह ही नहीं बची एक्सपैंड करने की, और इनके बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ आके मिल गए। और फिर फर्दर एक्सपेंशन के लिए इनको आपस में लड़ना पड़ा, और वो लड़े। इनके मुख्तलिफ किस्म के अलायंसेस थे, बॉल्कन्स में लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद वो फैलती चली गई और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। दिस वाज अ हॉरिफिक वॉर, बता ही नहीं सकता आपको कि कितनी टेरेबल वॉर थी। और इसके नतीजे में जब ये जंग हुई और मिलियंस ऑफ यंग लोग, आप जैसे नौजवान जो हैं, मर गए, मारे गए, तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, तो जो लोग बच गए पीछे, उन्होंने कहा यार इस तरह तो नहीं हम जी सकते, ये तो बहुत ही बुरी किस्म की, घटिया किस्म की ज़िंदगी है, हम इस तरह की जंग नहीं चाहते आइंदा। तो एक इनकलाबी लहर पूरी दुनिया के अंदर फैलनी शुरू हुई। थर्ड वर्ल्ड के अंदर यानी कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उभरी, ऑल इंडिया कांग्रेस की शक्ल में, सोन यात्सेन की शक्ल में, और मूवमेंट्स इस किस्म की उभरी कि वी डोंट वांट द गोराज इन पावर ओवर हियर, वी वांट टू रूल आवरसेल्व्स। सो द वर्ल्ड वाज इन अ रेवोल्यूशनरी टर्मोइल एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. And one of the revolutions that occurred, one of the many revolutions that occurred was in Russia, जहाँ पे काफ़ी अरसे से लोग मार्क्सिज्म पढ़ रहे थे और एक बड़ी अंडरग्राउंड किस्म की मार्क्सिस्ट पार्टी भी ऑर्गेनाइज थी, referred to colloquially as the Bolshevik Party. पूरा नाम उनका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ब्रैकेट बोल्शेविक था, कोई इतना लंबा नाम नहीं बोलता था उनका। तो रशिया के अंदर मिलियंस ऑफ लोग इसी तरह मारे गए बेचारे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। और फाइनली सोल्जर्स ने भी ये कहना शुरू किया और वर्कर्स ने भी ये कहना शुरू किया कि ज़ारिज़म को गिरना ही चाहिए। करप्ट तरीन हुकूमत, फ्यूडल किस्म की हुकूमत, हमारी को परवाह नहीं करती, फैमिन हो रही है, बुरे हालात हैं। सो देयर वाज अ फूड राइट इन मार्च 1917, जब पेट्रोग्राड, जिसको फिर लेनिनग्राड का नाम दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भी, आज उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ पे ख़वातीन निकली, सर्दी के अंदर ठिठर रही हैं, मर रही हैं, भूख लग रही है उनको, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें कोई रोटी दे दो, हम वी आर डेस्परेट। रोटी देने के बजाय सोल्जर्स ने उनको, जिस तरह होता है पाकिस्तानी पुलिस भी इसी तरह करती है, मारा मुरा पीटा, ये वो सब कुछ, राइट हो गया। राइट के नतीजे में उन्होंने, ख़वातीन ने जाके लोगों से कहना शुरू कर दिया, सोल्जर से कहना शुरू कर दिया, वर्कर से कहना शुरू कर दिया कि तुम इस तरह, तुम्हारी गैरत किधर है, मरे पड़े हो, सोए पड़े हो, कुछ करो, उठो। और हम भूखी मर रही हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम कुछ कर ही नहीं रहे। वो उठ गए सोल्जर्स और वर्कर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, और क्या हुआ कि वो एस्केलेट करता गया जब तक कि ज़ार को एब्डिकेट नहीं करना पड़ा, इनकलाब हो गया। यानी रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली बीबियों ने शुरू किया था, औरत मार्च ने शुरू किया था, सो टू स्पीक, ख़वातीन ने शुरू किया था। मगर जो नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था द प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्रोविजनल थी, इलेक्शंस करेंगे, ये वो सब कुछ होगा एक्सेट्रा, उसने भी, उसमें जो मेन पार्टी थी वो केरेंस्की की पार्टी थी, उसने भी फैसला किया नहीं नहीं हम इस जंग में रहेंगे। जंग की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। दे डिडंट ऑप्ट आउट ऑफ द वॉर, दे सेड विल स्टे इन द वॉर एंड ऑनर आवर कमिटमेंट्स टू आवर एलाइज एंड सो ऑन सो फॉर, जंग जारी रहेगी। सो वेरी सून दे बिकेम इवन मोर, दे ऑल्सो बिकेम अनपॉपुलर बिकॉज वॉट पीपल रियली वॉन्टेड वॉज पीस। तो बोल्शेविक्स ने, लेनिन ने नारा लगाया पीस लैंड ब्रेड, हमें वोट दो, हमें इक़्तिदार में लेके आओ, हम अमन करेंगे, हम ज़मीन भी देंगे, हम लैंड भी देंगे और हम ब्रेड भी देंगे, खाना भी देंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ।
and he became more and more popular. And in October, which is our November actually, क्योंकि Russians have a slightly different calendar from us, उन्होंने organize की एक revolt और they took over the Winter Palace, etc. And so the first Marxist revolution in the world history took place in Russia in 1917. अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो दूसरी कुव्वतें थीं, यानी कि इसमें इंग्लैंड है, इसमें फ्रांस है, इसमें सारे यूरोपियन पावर शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल था, वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया जो है वो वॉर से बाहर चला जाए। नंबर एक, वो चाहते थे ये लड़ता रहे, ये हमारा एला है, इसने हमें वादा किया था वहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेंगे एंड सो ऑन। नंबर दो, जाहिर बात है वो ये भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई वर्कर्स रेवोल्यूशन हो जाए, कोई कम्युनिस्ट, कोई मार्क्सिस्ट, कोई वर्कर्स जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएं। दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो उन्होंने फिर एक सिविल वॉर जो है फंड की, शुरू की और उसको सपोर्ट किया और अपनी फ़ौजें बाकायदा भेजी रशिया के अंदर कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन को डिफीट करना है। वो सिविल वॉर चली 1918 से 1922 तक, यानी 3.5 साल, तकरीबन 4 साल वो चली। हियर इज सम फुटेज और तस्वीरें रादर ऑफ द सिविल वॉर इन रशिया। इसमें जो दो साइडें बनी, एक का नाम था द रेड्स, वो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट थे, और दूसरी तरफ कौन थे? द वाइट्स, वो एंटी कम्युनिस्ट थे। दो फौजें बन गई। फौजें तो कई सारी थी, 18 के करीब फौजें थी, मगर दो साइड्स बन गई, द रेड्स वर्सेस द वाइट्स। अब आप अंदाज़ा करें कि यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, यूएस हो, जापान हो, इटली हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, चाइना, सब ने उसके अंदर मुदाखलत करनी शुरू कर दी। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम सेंट ट्रूप्स टू नॉर्दर्न रशिया and the Caucasus and provided significant material support to white forces. France intervened in southern Russia and the Black Sea region, including the Crimea. United States deployed troops to northern Russia as part of the Bear Expedition and the Siberian intervention. Japan sent a large contingent to Siberia और उन्होंने ईस्ट एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। Italy sent a small force to support the Allied intervention in Serbia. Canada भी सेड के हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी जाएंगे, तो वो उन्होंने भी जो है ट्रूप्स अपने भेजे। ऑस्ट्रेलिया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ साउथ पोल ਵਿੱਚ बैठे गए हो, इंजॉय करो थे वेदर, मगर उन्होंने कहा नहीं, हमने भी रशिया की सर्दी जो है देखनी है। वो भी जनाब आली पहुंच गए, अंदाज़ा करें। ग्रीस participated in the operation in southern Russia. China, which was not of course communist at this time, उन्होंने भी अपने लोग भेजने शुरू कर दिए इन साइबेरिया एक्सेट्रा कि मारो इन्हों। ओए हो, लिस्ट चलती जा रही है। पोलैंड ने भी अपनी फ़ौजें भेजी, रोमानिया ने भी अपनी फ़ौजें भेजी, चेकोस्लोवाकिया ने भी भेजी, एस्टोनिया ने भी भेजी, लाटविया ने भी भेजी, लिथुआनिया ने भी भेजी, फिनलैंड ने भी भेजी, और जापान का तो जिक्र हो चुका है। तो अंदाज़ा करें कि द न्यू बोल्शेविक रेवोल्यूशन, द फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, वाज फाइटिंग अगेंस्ट all of these countries, the most powerful countries, major as well as minor countries, less powerful countries. You can understand that the casualties of this was unbelievable. पहली बात तो ये कि military और civilian deaths was 7 to 12 million people. Combat related deaths were about 1 million people. Civilians killed in violence and massacres 500,000 to 1 million people. Deaths from famine and disease, 5 to 7 million people died as a consequence of this. Red Army की अपनी casualties 1.2 to 1.5 million. White forces की 3-4 लाख लोग मारे या मर गए diseases के अंदर. Foreign troops 50,000 से 1 लाख मारे गए. Epidemics पैदा हो गई, टाइफस, कॉलरा, स्पेनिश फ्लू फैल गया, 2-3 मिलियन बंदा उससे मारा गया, 2 मिलियन बंदा डिस्प्लेस हो गया. In other words, the result of this civil war was worse than World War I, in fact. इतना बुरा हाल था. अमेरिका बादशाह ने भी 13,000 अपने ट्रूप्स भेजे. एक पोलर एक्सपेडिशन में 5,000 ट्रूप्स वहाँ पे थे और साइबेरियन एक्सपेडिशन में 8,000 ट्रूप्स वहाँ पे थे. मगर मेनली ज़्यादा उन्होंने फाइटिंग करने के बजाय अपनी इकोनॉमिक पावर यूज़ की. $400 to $500 million उन्होंने उस वक़्त के $400-500 million जो आज के बिलियंस के बराबर हैं इन्वेस्ट किए. आज के वो $6 to $7 billion के बराबर हैं. उन्होंने इन्वेस्ट किए कि किसी तरह बोल्शेविक्स को शिकस्त हो जाए. उन्होंने वेपन्स दिए, एम्यूनिशन दी, यूनिफॉर्म्स दिए, व्हीकल्स दिए वगैरह सब कुछ. उनकी अपनी कैजुअल्टीज़ को बहुत बड़ी तादाद में नहीं हुई, मगर बहरहाल दे वर इन्वॉल्वड इन द वॉर. लो जी, रिज़ल्ट इस सारी चीज़ का ये हुआ कि रशिया का तो हाल इतना ख़राब हो गया कि फैमिन शुरू हो गई. इट वॉज एब्सोल्युटली हॉरिफिक. इट डेसिमेटेड द इकोनॉमी. फैक्ट्रीज, रेलवेज, फार्म्स वर डैमेज्ड, अबैंडन्ड. प्रोडक्शन ब्रोक डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म, फाके शुरू हो गए, डिजीज़ फैल गई, डिसेंट्री फैल गई. 5 to 7 मिलियन बंदा
सिविलियन आम लोग इस पूरी इकोनॉमिक प्रोडक्शन की तबाही के नतीजे में तबाह बर्बाद हो गया, जिंदगी खो बैठा। उन्होंने कम्युनिस्ट ने पहले वॉर कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस किया, मगर वो नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने रिट्रीट किया कि यार इतनी तबाही बर्बादी, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। आहिस्ता आहिस्ता जाके कई साल बाद रशिया बिगैन टू रिकवर, बट इट वाज अ डेविस्टेटेड कंट्री। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कहा जाता है कि 3 to 4 मिलियन बंदा रशिया का वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मारा गया, और सिविल वॉर के हवाले से कहा जाता है कि 8 से 10 मिलियन बंदा मारा गया। यानी टोटल इस पीरियड के अंदर 1914 से लेके 1922 द वर्स्ट पीरियड इन हिस्ट्री टू बी अ रशियन, 11 से 14 मिलियन बंदा उनका मारा गया। हॉरिबल। दिस इज अ सोसाइटी जिसमें मौत जो है ना, वो जिसको कहते हैं, इट वाज स्टॉकिंग पीपल एवरीवेयर, स्टॉकिंग लाइफ। In fact, things got so bad that people even began to resort to cannibalism. Yes, they began to eat each other. ये तस्वीर देख लें आपके सामने कि 3 बीबियाँ बैठी हैं और उनको भूख लग रही है और वो सोच रही हैं कि चलो फिर यही खा लेते हैं, ये आपके सामने। So that was the reality of what was going on at that time. Slowly over time the Bolsheviks recovered, and as they began to recover, Russia began to recover. उन्होंने एक 5-year plan बनाया 1928 में, industrialization शुरू की and so on. And surprisingly, by 1928, 29, 30, they actually began to, do quite well. Nobody thought that they could survive everything that had happened. They thought कि अब इतनी कमज़ोर है हुकूमत कि या तो खुद ही गिर जाएगी, अगर खुद ही नहीं गिरी तो ये इसी तरह ही रहेगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह है वो, उससे भी बुरा हाल था। But surprisingly they recovered, and as they recovered, यूरोप के अंदर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी वो भी तगड़ी होती चली गई। उन्होंने कहा जी अब सोवियत यूनियन भी रिकवर हो रहा है और हम भी तगड़े हो रहे हैं, so on so forth. So in Europe they started a huge reaction, a new reaction to Bolshevism, which really is what we refer to as fascism and Nazism. फैशिस्ट और नाज़ीज़ वो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो जमहूरियत और लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर और वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सब बकवास, हमने लिबरलिज्म को ना कबूल करना है क्योंकि ये तो एमी विशी वॉशी किस्म की चीज़ है, और हमने अपना एम्पायर कायम करना है। इटली का एम्पायर होना चाहिए। इटली का ऑलरेडी in North Africa they had their sphere of influence, etc., areas of influence. They wanted to extend that in Libya and so on. Or Germany wanted to be an empire, and Germany had, of course, industrialized in the late 19th century, and that's why, of course, it fought in World War I to get an empire. So the people who were leading this initiative were Hitler over here and Mussolini. And they saw, especially the Germans, saw कि उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट क्या है? Bolshevism. Because German जो कम्युनिस्ट थे वो कहते थे कि एम्पायर शैम्पायर नहीं हमने करना, हम तो कम्युनिस्ट किस्म की रियासत बनाएंगे, कोई क्लासेस नहीं होंगी, कोई कैपिटलिज्म नहीं होगा, कोई एम्पायर नहीं होगा, ये वो फलां फलो। तो हिटलर जो है now turned against the Bolsheviks in a huge way. His main thing was to recreate the German Empire. He himself personally had also fought in World War I. He really subscribed to those ideas as a young man, to the idea of a big German empire. So he thought that the biggest obstacle to the German Empire was the Social Democratic Labour Party of Deutschland, Germany, which was the main Marxist party at that time. So he started his attacks on them. और उसने ये कहा कि ये तो सारी Jewish conspiracy है, the Jewish Bolshevik conspiracy. डॉक्टर इसरार अहमद से पहले जो original architect of the Jewish conspiracy theory, the greatest architect of the Jewish conspiracy theory is Mr. Hitler. कि पूरा बोल्शेविज्म Jewish conspiracy, नीचे को भी उठा लिया उसने, ये वो फलां फलो जो भी चीज़ें इकट्ठी करके वो पक्की पढ़ा सकता था उसने पढ़ाई। Mussolini was the more intellectual of the two, not necessarily so anti-Semitic because this was not a big question with respect to Italy, but again very anti-Bolshevik कि इसको crush करना है. And very soon the major powers of Europe joined with them. ये बड़ी दिलचस्प बात है कि फैशिज्म और नाज़ीज़म कोई अपने ज़माने की अनपॉपुलर मूवमेंट नहीं थी। ये नहीं कि सब उसको सपोर्ट करते थे, मगर ये कि यूरोप की इलीट्स बाय एंड लार्ज बहुत फैशिज्म को और नाज़ीज़म को सपोर्ट इसलिए करती थी क्योंकि वो कहती थी कि इन्होंने सही जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया है किसका? कम्युनिस्टों का। So we have to support them in order to crush the left. And they did, which is why across most of Europe
when Hitler began, rearmed Germany, and so on, and began to march, so most of Europe basically gave in without much of a fight. They didn't really fight. कोई बड़ी लड़ाई अभी तक नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस मुल्क की elites भी ये कह रही थी कि आजा हिटलर, come to our country and help us crush the communists. हम भी चाहते हैं कि तुम इनको मारो आके. तो इस तरह Germany expanded almost without too much, too many casualties in this early period. Until, of course, they began to attack stronger countries, France, later England, and of course the Soviet Union. Meanwhile, दूसरी तरफ से Japan had been expanding as an imperial power from the late 19th and early 20th century. अब जापान आप सोचेंगे हैं उनका क्या ताल्लुक है एम्पायर से? जनाब यानी जापान का एम्पायर आपके यहाँ सामने, ये जापान है यहाँ पे, और ये देखें जापान ने ये सारा एरिया कॉन्कर कर लिया, और ये सारा बर्मा का एरिया भी कॉन्कर कर लिया, और ये देखें यहाँ तक पूरा जापानीज एम्पायर फैल रहा है. और जापानीज हैड डेल्ट अ terrible blow to the Tsarist Empire in 1905 over here in a war, and they had emerged now as an imperial power. जब वो बर्मा में आ गए तो उनको देखा देखी, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मिस्टर जापान हमें भी थोड़ी सी असिस्टेंस दें, हम आपसे असिस्टेंस लेके तो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया को आज़ाद करेंगे ब्रिटेन से. वो भी कहानी आपने सुनी जिसके नतीजे में इंडियन नेशनल आर्मी पैदा हुई. सो जापान वॉज अ मेजर मेजर इंपीरियल फोर्स. मगर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस एरिया के अंदर और किसके मुफाद थे? हु वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग into the East Asia? Of course, the United States of America. They had already taken over Philippines, as you know, in the Spanish-American War. और उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग यही थी कि हमने चाइना के अंदर, हमने इस पूरे एरिया के अंदर एक्सपैंड करना है, हमने एक पैसिफिक पावर बनना है. चाइना के अंदर उनका एक मिशन भी था एंड सो ऑन. सो इट वाज इनेविटेबल कि जापान और अमेरिका बादशाह का ईस्ट एशिया के हवाले से कॉन्फ्लिक्ट होना था. और क्योंकि जापान का कॉन्फ्लिक्ट चीन से भी था और रूस से भी था, तो चाइना, रशिया वर एलाइड ऑफ कोर्स नाउ विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ऑन द अदर साइड वाज जापान. वजह इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वजह इसकी कोई थियरी नहीं है, वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस एरिया में जापान एक्सपैंड करना चाहता है वो एरिया, अमेरिका भी उस एरिया में एक्सपैंड करना चाहता है, रशिया भी उस एरिया में एक्सपैंड करना चाहता था, ज़ारिस रशिया भी उस एरिया में एक्सपैंड करना चाहता था. और जाहिर बात है चीनी लोग यहाँ पे रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई यू शुड एक्सपैंड एट आवर एक्सपेंस. सो इन वर्ल्ड वॉर II जापान डिसाइडेड कि मैं पर्ल हार्बर की पे जो नेवी स्टेशन है इस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारता हूँ. क्यों उन्होंने स्ट्राइक मारी? उन्होंने इसीलिए स्ट्राइक मारी कि जनाब अली, उनको अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है वो हमें पैसिफिक के अंदर चैलेंज करने लगा, तो इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें हम उन पे अटैक करें. ठीक है ना जी, ये असल मामला था. उठ के बैठे, शाबाश. Anyway, so this is why the alliances were the way they were. And when, of course, Japan attacked the United States of America at Pearl Harbor, then the US decided that they are also going to join the war. And Japan का alliance किसके साथ था? Germany के साथ था. Japan का alliance किसके साथ था? Italy के साथ था. तो ये थी Axis powers और उनके मुखालिफ थी Allied powers. अब आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूसरी तरफ. फ्रांस आपको यहां नजर नहीं आ रहा बिकॉज जर्मनी ने मोर और लेस फ्रांस को कॉन्कर कर लिया था. और सोवियत यूनियन, which is a communist state, on this side, and on this side are the two fascist and Nazi powers, Germany under Hitler, but it's not now just Germany. Germany has expanded quite a bit dramatically. The Italian fascists, Benito Mussolini, and of course Japan. ठीक है, इन दोनों के दरमियान बेसिकली लड़ाई थी. यहाँ पे लिखा था रैप बैटल्स ऑफ हिस्ट्री, मैंने रैप जो है वो थोड़ा सा डिलीट कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे नक्शे पे आप देख सकते हैं कि एलाइड पावर्स कौन सी हैं और एक्सेस पावर्स कौन सी हैं. ये जो डार्क रंग है आप देख सकते हैं कि ये एक्सेस पावर्स है, इटली, जर्मनी और जापान. और जो दूसरी ब्लू है, दीज आर द एलाइड पावर्स. ऑफ कोर्स दीज आर द मेजर पावर्स. व्हाई आर दे सो ह्यूज? बिकॉज एक तो यहाँ पे ये छोटा सा ब्रिटेन है, ब्रिटेन, मोस्ट ऑफ दिस एरिया तो ये ब्रिटेन ने कंट्रोल किया. फिर उधर फ्रांस है, मोस्ट ऑफ दिस एरिया तो फ्रांस ने कंट्रोल किया हुआ, एंड सो ऑन. ठीक है, सो इस वजह से इनका इकोनॉमिक स्फीयर ह्यूज था, मैसिव था. एंड ऑफ कोर्स यू हैव द सोवियत यूनियन इन हियर. सो इस पीरियड के अंदर, owing to the unique confluence of interests at that particular
point in time. The fact that Germany as an empire is going to expand both this way and also is going to expand eastwards. अब देखो ईस्ट में उसके पास कितनी जगह एक्सपैंड करने की. और what Germany really wanted was living space from the Soviet Union, from Ukraine and so on. कि इन कमबख्तों को हम यहाँ से मार भगाएंगे जिस तरह के इजराइलियों ने फ़लस्तीनियों को मार भगाने की अब आज भी कोशिश कर रहे हैं. इनको हम यहाँ से मार भगाएंगे और इनकी ज़मीनें हम टेक ओवर कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी कॉलोनीज़ बनाएंगे, यहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चरल कॉलोनीज़ बनाएंगे, यहाँ पे हम जर्मनी को और बड़ा करते रहेंगे. हम जर्मन लोगों को मूव करेंगे इनटू यूक्रेन एंड इनटू द सोवियत यूनियन, जहाँ वो जाके रहेंगे, सेटल हो जाएंगे और इस तरह हम इक़्तिदार में आ जाएंगे. अब वर्ल्ड वॉर 2 में देखो कितनी डेविस्टेशन हुई. 70 से लेके 85 million people died in that war. I mean, it rolls off the tongue so easily. But this is absolutely horrific. इसमें से सोवियत यूनियन में कहते हैं 24 to 27 million बंदा सिविलियन एंड मिलिट्री मारा गया. चाइना के अंदर 15 to 20 million बंदा मारा गया. जर्मनी के अंदर 7 million बंदा मारा गया. पोलैंड के अंदर 6 million बंदा मारा गया. जापान के अंदर 3 मिलियन बंदा मारा गया. यूगोस्लाविया में मिलियन से ज़्यादा 1.5 मिलियन बंदा 1.7 मिलियन मारा गया. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी तकरीबन 4 लाख बंदा इसमें मारा गया, मेनली मिलिट्री, बिकॉज अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर तो कोई जंग नहीं ना हो रही थी तो वो सिविलियन नहीं मरे. यूनाइटेड किंगडम का भी कोई 4-5 लाख बंदा मारा गया. फ्रांस का भी कोई 5-5.5 लाख बंदा मारा गया. हॉरिफिक वॉर, जस्ट एब्सोल्युटली टेरिबल, द वर्स्ट थिंग एवर. और सबसे ज़्यादा हॉरिफिक वो किसके लिए थी? यूएसएसआर के लिए. 24 to 27 million deaths. It was the country with the highest number of casualties in that entire conflict. Military deaths were between 8 and 11 million. Civilian deaths were up to 16 million people. उसकी एक वजह ये थी कि आपको बताया था कि नाज़ीज़ ये चाहते थे कि यहाँ से ये लोग दफ़ा हो जाएं. तो जब एक तो वो मैसेकर्स, मारना, लोगों को भगा देना, ज़मीनों से भगा देना, पिंड के पिंड साड़ देना, और फिर जब नाज़ीज़ ने विड्रॉ किया, उनको शिकस्त भी हुई, तो दे डिड द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी. स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ये थी कि सारी फील्ड्स को आग लगा दो, सारी विलेजेस को आग लगा दो, क्योंकि जो एडवांसिंग आर्मी है उसको कोई सप्लाईज ना मिल सकें फ्रॉम द लैंड. उससे भी कितने बंदे मार गए. 1 मिलियन उन्होंने सोवियत जूस को कत्ल किया होलोकॉस्ट के अंदर. 1 मिलियन, वैसे ओवरऑल जूस इससे ज़्यादा मारे गए मगर इस एरिया के अंदर 1 million civilians died of starvation in the siege of Leningrad, which lasted 872 days. Leningrad, of course, is St. Petersburg. और सेंट पीटर्सबर्ग के इर्द गिर्द हिटलर ने अपनी फौजें खड़ी कर दी. ही couldn't take the city, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग थी. उसने कहा यहाँ कोई खाना पीना अंदर नहीं जाएगा. दोनों तरफ से उसने फौजें ब्लॉक कर दी. उसने कहा इनको भूखा मार दो. अंदाज़ा करें 1 मिलियन बंदा उसमें मार. एंड ही सेड देयर इज़ अ लॉस्ट सिटी बाय द नेम ऑफ लेनिनग्राड. जर्मन में उसने कहा हिस्ट्री थिंक्स के इसका वजूद ही नहीं रहना चाहिए, इसको ख़त्म कर दो. He wanted to eliminate the entire city. But they survived. And how they survived is a very interesting thing itself. कि लेनिनग्राड के साथ लेक लगती है जो दूसरी तरफ से फिनलैंड वगैरह को टच करती है. विंटर में वो लेक जो है ना वो आइस बन जाती है. तो सोवियट्स ने क्या किया, उस आइस के ऊपर से उन्होंने सड़क बनाई और वहाँ से उन्होंने अपनी सप्लाईज लेनिनग्राड को पहुँचाई और लोगों को ज़िंदा रखा कि लड़ते रहना है, गिव अप नहीं करना. So basically, Soviet Union in that war lost 14% of its population. हम तो बड़ा कंप्लेन करते हैं, आए बड़े बुरे हालात हैं वगैरह. Imagine losing 14% of the people of your country in that war, in that single war. पहले यानी वर्ल्ड वॉर 1 में मिलियंस मरे, फिर उसके बाद सिविल वॉर के अंदर 10 मिलियन मरे, फिर उसके बाद यहाँ पे 26 मिलियन मरे. इतना बंदा मरा है, इतना बंदा मरा है in the 20th century in Russia कि कोई मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर जिसमें इतना बंदा मारा गया हो और मरा हो जितना कि रशिया के अंदर हुआ. So they triumphed, but they were a devastated country. खुद देख लो statistics. German invaders had destroyed 1,700 cities and towns, more than 70,000 villages and hamlets. They demolished more than 6 million buildings, over 31,000 industrial enterprises. They wrecked 61 of the largest power stations, 1,100 coal pits they destroyed, and more than 3,000 oil wells they blew up. They dismantled 40,000 miles of railroad track, blew up 56,000 miles of main road, and ruined 90,000 bridges. कोई ब्रिज नहीं छोड़ना उन्होंने अपने इलाके के अंदर.
The Germans destroyed tens of thousands of collective farms and machines and tractor stations. They stole and slaughtered, जानवर भी मार दिए, 17 million cattle को उन्होंने कत्ल कर दिया, खा गए, पी गए, मार दिया, जो भी. 20 million hogs, सूरों को भी नहीं छोड़ा सूरों ने. 27 million sheep and goats, 110 million chickens, 7 million horses. They destroyed that country completely. Destroyed it utterly. Anyway, World War I ख़त्म होने को आ रही थी. America was working very hard on the Manhattan Project, which was to build the atomic bomb. So anyway, they developed the atomic bomb and they decided, they bombed Hiroshima and Nagasaki. ये दो वो explosions हैं, उनकी तस्वीरें. और एक फ्लैश में, एक बॉम्ब के नतीजे में पूरे की पूरी सिटी बर्बाद हो गई. ये देखो, ये सवाए इस बिल्डिंग के, ये यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स होती थी. ये देखें, ये सड़कें हैं, ब्लॉक्स हैं, उनके दरमियान बिल्डिंग्स होती थी. सब का सब फ्लैट हो गया. Approximately 100,000 people lost their lives in each city with just one bomb. धड़ल 100,000 dead, 80,000, 90,000, जो भी मोटा मोटा आपको हिसाब दे रहा. लाख लाख बंदा एक बॉम्ब से, एक चुटकी में खत्म. Humanity had never seen this level of destructive power. The ability to destroy entire cities. 5-6 बम मार दें तो सारा कुछ ही खत्म. और ये तो बड़े पुराने बम हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 1945 का बम है. आज के बम जो हैं वो ऐसे 80 गुना 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, शायद उससे भी ज़्यादा ताकतवर है. अब तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स और जार बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या इजाद हो चुका है. यू कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड. एनी सिटी यू वांट, यू कैन डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, रेज इट फ्रॉम द ग्राउंड. इफ़ यू एवर टेक द अपॉर्चुनिटी टू सी द डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ दैट पीरियड, एक बड़ी खूबसूरत सीरीज़ है कॉल्ड द वर्ल्ड एट वॉर, और इंपीरियल वॉर म्यूजियम लंदन ने उसको बनाया है. ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री, 5 पार्ट, एक्चुअली 5 DVDs पे वो आती है, कई उसके पार्ट्स हैं. पूरी वर्ल्ड वॉर 2 उसने डिस्क्राइब की हुई, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. और कसम खुदा की वो देख के, मैंने जब वो देखी थी, मैं तो रो रो के पागल हो गया था कि इंसानियत के साथ ऐसी बर्बरियत सोच भी नहीं सकता इंसान. The dropping of these bombs is often considered by historians to be the first shots of the Cold War. What do I mean by that? कि ostensibly United States of America और Soviet Union तो बड़ी बड़ी हैं, एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं. तो फिर ये बम जो गिरा, how can it be the first shot of the Cold War? चक्कर ये है कि Soviet Union was going to declare war on Japan, defeat Japan and take over Japan naturally. The Americans, of course, they knew about those war plans. Before the Soviets could implement the war plans, they decided, in fact 2 days before, August 8th को उनकी डिसीजन था कि हम अपना इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, अटैक लॉन्च करेंगे. तो August 6 को उन्होंने धड़ 2 बॉम्ब गिराए और मजबूर किया जापानीज को कि आपने सोवियत यूनियन को सरेंडर नहीं करना, आपने हमें सरेंडर करना है. तो जापानीज ने फिर अमेरिकनों को सरेंडर किया और अमेरिकनों ने फ़ौरन अपनी फ़ौजें जापान भेजी और जापान को ऑक्यूपाई कर लिया. वजह क्या थी? अगेन, एक तो वजह यही थी कि सोवियत यूनियन को नहीं आने देना कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों, मगर दूसरी वजह ये भी थी कि ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ वेरी की इंटरेस्ट्स इन द पैसिफिक एंड दे वांटेड टू मेक श्योर दैट दे कैन कंट्रोल दोज इंटरेस्ट्स. सो फॉर दैट रीज़न, जहाँ एक तरफ जापान के खिलाफ न्यूक्लियर बम इस्तेमाल हुआ, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को भी दिखाया, वेखिया साढ़े कोल की पे है, असी पूरे पूरे शहर तबाह कर सकते हैं. ठीक है ना. उनको भी बताया उन्होंने कि भाई वी हैव दिस ऑसम इनक्रेडिबल वेपन व्हिच कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग. उस ज़माने के अंदर कोई एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट नहीं थी. ये तो बाद में जब लोगों ने देखा कि ये क्या किया इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में, तो फिर जो ट्रूमन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था उस वक्त, जिसने ये फैसला किया, उस पर बड़ी लान तान भी हुई और एक बड़ी मूवमेंट डेवलप हुई कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया में होने ही नहीं चाहिए क्योंकि इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं. मगर उस पीरियड में दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ह्यूमैनिटी हैड एवर सीन इट. अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है, तो देखा तो फिर पता चला कि ये क्या चीज़ है. मीनवाइल सोवियत यूनियन ने अपना अटैक जो है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी जापान की, वहाँ पे शुरू किया. यू कैन सी दिस इज़ मैंचूरिया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया. दिस इज इनर मंगोलिया आपको नज़र आ रहा है, ये सोवियत यूनियन ऊपर आपको नज़र आ रहा है,
ये नीचे आपको कोरिया नज़र आ रहा है. So they swept in from here and started taking over North China essentially. And with their help, of course, communists also came into now Korea. They were already in Korea, of course, but with their help, the communists in Korea became very strong as well. मैं आपको ये नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ इस वजह से कि आपको अंदाज़ा हो कि now how the battle lines had shifted. This is the Soviet Union at the time that Nazi Germany was expanding. ये आप देख सकते हैं, ये जर्मनी है, ठीक है, ये नीचे इटली है, ये उनका ब्लॉक है पूरा बड़ा पावरफुल फैशिज्म और नाजीज़म का. ये इस तरफ आके उन्होंने ये नॉर्थ फ्रांस को पूरा टेक ओवर कर लिया और ये सारी टेरिटरी उन्होंने देखी. ये स्वीपिंग, ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, दे स्वीपिंग अक्रॉस द सोवियत यूनियन. ये सारा उन्होंने यहाँ पीछे तक उनको धकेल दिया, ये लेनिनग्राड यहाँ पे एंड सो ऑन, पीछे तक उनको धकेल दिया. So they taken over all this territory from the Soviet Union. But now when the Soviet Union fought back, they took back all that territory. You can see they have all the way up here into Germany. ठीक है, पिछला वाला नक्शा देखो before, अगला वाला नक्शा देखो after. ठीक है, this became now, यहाँ पे रेड आर्मी है, इन्होंने फैशिस्ट और नाज़ीज़ को डिफीट किया, एक्सिस पावर्स को डिफीट किया. सिर्फ जर्मनी और इटली नहीं इसमें लड़ रहे थे, बहुत सारे मुल्क इसमें लड़ रहे थे. तो डिफीट करके ये दिस बिकेम द रेड जोन, और यू कैन से दिस बिकेम द जोन ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस. जर्मनी भी इसमें शामिल था. इस लड़ाई को हम कहते हैं द ईस्टर्न फ्रंट. एक है वेस्टर्न फ्रंट और एक है ईस्टर्न फ्रंट. वेस्टर्न फ्रंट पे आपने बड़ी फिल्में देखी होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल डी डे एंड यू नो जिसमें नॉर्मंडी वगैरह की इन्वेजन और सेविंग प्राइवेट रायन वगैरह, ये सारी फिल्में वेस्टर्न फ्रंट के बारे में. बट द बिग वॉर वॉज इन द ईस्टर्न फ्रंट. एक फिल्म है, उसका नाम है द एनिमी एट द गेट्स, तो वासिली जायत्सेव के बारे में, हु वाज द सोवियत स्नाइपर वर्सेस द जर्मन स्नाइपर, और वो जो जंग स्टालिनग्राड में हुई, अमेजिंग फिल्म. सो वो बड़ी ब्रूटल जंग थी जो ईस्टर्न फ्रंट पे थी. अंदाज़ा खुद लगा लें, टोटल जर्मन मिलिट्री डेथ्स इन वर्ल्ड वॉर II वर 5.3 मिलियन. टोटल डेथ्स वर 5.3 मिलियन. ईस्टर्न फ्रंट पे 3.5 to 4 मिलियन डेथ्स जर्मनी की हुई. जर्मनी की फौजें बेसिकली ईस्टर्न फ्रंट पे तबाह हुई, फ्रांस में नहीं तबाह हुई, डी डे में नहीं तबाह हुई, इंग्लैंड ने नहीं तबाह की, बेसिकली इस तरफ से तबाह हुई. 75 to 80% of the fascist forces and Nazi forces were destroyed because of the Red Army in the Eastern Front. The Soviet Union also then captured an estimated 3.5 million German soldiers. Of the 13.6 million German soldiers who served on the Eastern Front, more than 10 million were killed, wounded or captured by the Red Army. So 13.6 में से 10 मिलियन जो है ना ईस्टर्न फ्रंट में तबाह हुए. जर्मनी की जो फौज और फैशिस्ट नाज़ीज़ की जो फौज है वो बेसिकली तबाही ईस्टर्न फ्रंट पे हुई थी, नॉट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. एंड ऑफ कोर्स देयर वर अदर आर्मीज दैट वर फाइटिंग. रोमानिया की फौज थी, 5-6 लाख उनके बंदे मारे गए या वुंडेड या कैप्चर्ड. हंगरी के 3-4 लाख, इटली के 45,000 से 50,000, फिनलैंड के 90,000 तकरीबन 1 लाख. यानी कि ये भी टोटल कैजुअल्टीज बाकी तमाम को मिला के वॉज अनदर 1 मिलियन पीपल. Unbelievable, unbelievable. I want to show you this footage